So guys, this is my biannual flag hoisting ceremony. हाँ, उसको रस्सी को खींचिए खींचिए खींचिए, खुल गया हाँ हाँ हाँ, हो गया। जय हिंद। ठीक हुआ कि नहीं? हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। So, folks, this is Bob from BBD. Yesterday's speech has been juxtaposed against the speeches he made in 2019, 2020, 2021. This is what he said. 1 lakh crore in 2019 for some pipeline which hasn't seen the light of day. Then 1 lakh plus crore again in 2020 to fight the COVID. Nothing really on the ground. Except loans and more loans and more loans, and nobody takes the loan. Then 1 lakh crore again. It's like, he's selling our family cinema. खानदानी जायदाद बेच रहा है। और ये आयरनी ये है कि ये जो खानदानी जायदाद इकट्ठी की है, ये कांग्रेस वालों ने की। कौन सी है? ये सारे पीएसयूज हैं, इनको बेच रहे हैं। राइट, पहले इनको गालियां निकालते हुए पीएसयू बेच के फिर हम नीलाम कर रहे हैं, सबको दे दो पैसा, सारा ले जाओ। और कुछ ग्राउंड पे नहीं जा रहा। अभी पता नहीं कौन से इनके कुंजपुती कुछ आएंगे जो पैसे बना लेंगे, बाकी सारों के पास के हिस्से में तो कुछ नहीं आ रहा। Okay, what does he say? PM unveils 100 lakh crore Gati Shakti plan to boost infra. Modi calls for saturation coverage of welfare scheme for beneficiaries. Like this, we've done it for this. He's done it for 3 years before. Besides, when he was talking all loud before he got elected, and if we still believe him in the 3rd year, right? We really, all of us need our head examined, right? And then you have Puri, whose mathematical skills leave a lot to be desired. Puri economy at 5 trillion will double up per capita इनकम। तो मैं सरदार साहब ने पूछना हैगा, मैथ तो कीता ही होना, इन्होंने शायद ना कीता हो, तो मैं पूछना हैगा 5 ट्रिलियन कद होएगा? इन्होंने पता है कि ना हुण 2 ट्रिलियन जेड़ा सीगा 2 साल पहला वो भी नहीं रहा। हुण जब तक unfortunately he doesn't realize that it depends on the weakness of the rupee. If the more the rupee weakens, the lesser dollar denominated GDP goes. Sardar Sahab is in trouble. Tata is having big role in country's development, says Goyal. Right, sure. That's after he's called them anti-national for investing overseas. Now that's kind of a peach, man. He really notices that. So this is pint-sized ministers with pea-sized brains. I guess what do you expect? Right? Then you have this, India's road ahead, the challenges and compasses. He says the attempt. So basically it's Sabka Prayas. What does Sabka Prayas mean? Sabka Prayas basically means, man, it's all your effort. The government, he says, basically it means Sabka Prayas sounds good and alliterative, but it also looks like a negation of PM's own ideas of re-energizing administration and delivery in order to pass the burden of recovery and revival onto the people amid a public health emergency. So he's passed the burden on to us. Then this is a real diabolical plot. PM August 14 to be Partition Horrors Remembrance Day. Shah says Remembrance Day will strengthen peace, love and unity. Do these two guys know anything about partition and the horrors of partition? Like, I don't, right? But my parents, grandparents, we are all kids of refugees. Delhi is full of them. We know, right? Punjab knows, Delhi knows, Bengal knows. But does Gujarat ever felt that pain? Never. UP probably not either. Not the kind of pain. Now for him to remind us of this, just for the sake of UP elections, the kids have gone. I think the worry that he has is the kids have forgotten the horror of partition, hence they're not going to be anti-Muslim, right?
So there comes, let's remember partition, let's remember partition. So why doesn't he remember what the British did to us, right? However, look at this. In strongest words, I condemn PM Modi's short-sighted and absolute divisive announcement of 14th August as partition remembrance. Right? He says only an illiterate man with no sense of history and well-being of future, India could and coming generations would have come out with such an announcement. If we need to remember, then why not 1984 anti-Sikh riots, whereby thousands of innocent Sikhs, including children, were killed by majoritarian Hindus, not by the Congress. Just remember that, right? Please remember, Congress may have been in power, but utmost inhuman acts were unleashed by people claiming to be Hindus. This last, but no Muslim or so-called foreign power has treated fellow Hindus as worse than fellow Hindus led by a Brahminical system. Figure that out, folks. That's India's reality. This is diabolical. The pain is for people who actually witnessed partition, not these people sitting on top of. They have no right to bring this up. Cheers. More later. आंडो कॉफी नेक्स्ट। हाँ भाई, तुम क्या लाए हो? चुपचाप सारा पैसा इस बैग में भर दो। पीछे अकाउंट नंबर लिखो। सिक्योरिटी सिक्योरिटी जी मैडम। मोदी मोदी हमारे देश को ऐसा एक अक्षम प्रधानमंत्री, एक ऐसा निर्लज, एक ऐसा नपुंसक प्रधानमंत्री मिला है जो देश चलाने लायक नहीं है। आप नहीं, आप ऐसे नहीं, मैं वीडियो बनाता हूँ मैम। आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं मोदी के लिए वीडियो बनाता हूँ। और ताज्जुब की बात देखिए कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता भी हूँ और मुझे कार्यकर्ता भी हूँ और मुझे इतना दुख है। ऐसे निर्लज, ऐसे नपुंसक, ऐसे अक्षम प्रधानमंत्री से देश को हमने दे दिया है। दिक्कत कैसे हो गई? आप दिक्कत चाहती हैं? दिक्कत चाहती है? दिक्कत क्या किसानों के लिए कम है जो 8-8, 9-9 महीने से बने? आप ये देखिए कि 8 महीने से वो लोग बेचारे बैठे हैं, इनको कोई सुनवाई की बात ही नहीं है। ये अक्षम निर्लज प्रधानमंत्री 303 का है। आपको मैडम वीडियो नहीं दिखाएंगी, हमें मालूम बड़ा है जो वहाँ पर बॉर्डर। मैं किसानों का मुद्दा ही नहीं है, ये पूरी तरीके से अक्षम है। अभी भी आपको बता दे, कोई इस देश में नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकेगा इसमें। ये अक्षम प्रधानमंत्री, अक्षम। मुख्यमंत्री के बारे में क्या है? मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं भैया अभी मैं वहाँ से आ रही, रोड से आ रही हूँ, फ्री वैक्सीनेशन राशन। देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में बहुत विशेष टिप्पणी तो नहीं करूंगा, मगर वही है ना कि जिसकी सरकार है वो चला रहे हैं। मुझे मुख्यमंत्री से कोई इतना वो नहीं है। आप महंगाइयों की बात ना करें, आप रोड सड़कों की बात ना करें, आप व्यवस्था की बात करें। आप व्यवस्था में दे क्या रहे हो? किसी को सिर्फ दर्द दे रहे हो। आप यहाँ पे मैं कहना अभी चाहता हूँ, आप जिस सुप्रीम कोर्ट की दावत बड़ी दुहाई देती है, सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, यहाँ अतिक्रमण नहीं होगा, आदेश का पालन होता है। सुबह क्षेत्रीय पुलिस आती है, अतिक्रमण हट जाता है, उसके बाद शाम को फिर लग जाता है। तो काहे के सुप्रीम कोर्ट और काहे का ये संस्था पे कितना पैसा हमारा देश फूकता है, आपको पता है? इस संस्था पे कितना इस संस्था पे कितना पैसा फूक रहा हमारे देश का। Okay, so here we go, right? You can understand with the UP elections coming up, it's all about essentially creating a divide between Hindu and Muslims. So there's nothing else, barring 1 lakh crore, 2 lakh crore, 3 crore, all nonsense. And I think most people have seen through that. As State of the Union Tavleen Singh, right? She says Modi has lost so much prestige that posters saying Dhanyavad Modi will make no difference. What will make difference is real improvement in the economy and the speed at which we are vaccinating India and a serious effort to stop Hindutva hate crimes. And none of that is happening. As you see, what we have here from Karan Thapar, the PM silence on Siddiqui is distressing. Let me then come to a third question. It is the most depressing of all, but the fact it's being asked could also make it the most pertinent. Was the PM silent because Siddiqui was Muslim and the UP elections are coming up? No one other than Modi can answer, though many will have their suspicion. Indeed, some would probably have no doubt at all. Let me respond differently. If the Pulitzer Prize winning photographer had been called Devendra Sharma, would anyone in BJP have ignored the death at the hands of the Taliban?
Suppose this name was Dharam Singh or even Desmond Sequeira, would this death have been received in silence? This is the important part, folks. Then what do you have here? 6 held for assault on UP Muslim man, 3 get bail, charges framed against BJP MLA for instigating 2013 Muzaffarnagar riots. Repeat. Communal slogans. Court rejects plea of 3 accused, says remarks undemocratic. And this is, like she said, vaccinating. Is it happening? Mixing shots a bad idea. India may not meet December 31 targets, SII founder. Not sure if all adults will get jabs by year end, says SII chief. Folks, so vaccination not there. All we have is these numbers. He loves these, throwing these numbers. It's not his money, it's our money, our taxpayer money, all the money accumulated over all these years by the Congress and building all these PSUs. I have nothing against privatization, folks. I think it should happen. But not in a fashion where you just keep throwing these jumlas, 1 lakh crore. And probably after they win the elections, if Shah is going, when the money is not sent, Shah is going to come up and say, yaar, ye to jumla hi tha. You know, ye to jumla hi tha. सरकार ही जुमले वालों की है. जय हिंद. जनता पार्टी है मुरली मनोहर जोशी वाली. ये जनता पार्टी गुजरात से उदय होता है, नागपुर उसके आगे फीका है, क्योंकि जो केंद्र में हो रहा है वो नागपुर के ही भरोसे हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता. लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला ना उगल सकते ना निगल सकते, ये स्थिति हो गई. योगी आदित्यनाथ को आप पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी मजबूरी है उनके कसीदे पढ़ना. लेकिन ये स्थिति इस सरकार की भी है कि उत्तर प्रदेश, जब आसाम में चुनाव हुए तो आसाम के मुख्यमंत्री के काम के ऊपर वहां के लोगों ने मतदान किया, लेकिन बाद में उनके जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया. मुझे याद है कर्नाटक में जब एक हुंकार भरी थी येदियुरप्पा ने, तो 110 से 40 पे आ गई थी बीजेपी. फिर बीजेपी नतमस्तक हो गई येदियुरप्पा के बाद. येदियुरप्पा ने फिर सत्ता में लाया, भले ही तोड़ जोड़ के लाया हो, लेकिन समय आते से उस येदियुरप्पा को भी इन्होंने शहीद करवा दिया और दूसरी जगह अलग मुख्यमंत्री बनाया. ये तो समय बताएगा कि आने वाले लोकसभा में कर्नाटक का किधर करवट बदलता है. उत्तर प्रदेश में भी बाय एंड लार्ज यही है. वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनको नकारा बोल नहीं सकते और आने वाले चुनाव के लिए उनका नाम ले नहीं सकते. ये दुविधा में फंसे हैं. बार बार ये कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल के हश्र के बाद अब मोदी का नाम यूज करने में भी डर रहे हैं. उनको लगता है 2024 तक ये ब्रांड इतना डैमेज नहीं हो जाए कि आने वाले समय में फिर ये ब्रांड ही नहीं रहे. तो फिलहाल माफ कीजिएगा, फिलहाल स्थिति ये हो गई है कि योगी जी नंबर 1 योगी जी खुद को कह रहे हैं. कोई ऑस्ट्रेलिया में एक सांसद ने बोल दिया बेचारे, योगी जी को ऑस्ट्रेलिया भेजो, नंबर 1 बनाना है ऑस्ट्रेलिया को. तो जब ये नंबर 1 का पोस्टर दिल्ली में भी छपा तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि अशोक जी उत्तर प्रदेश नंबर 1 काय में है, क्योंकि देश के विभिन्न पोर्टल पे मैं बात करते रहता हूँ. तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अज्ञानी हूँ. लोग बड़ा पत्रकार कहते हैं, आप भी बहुत कहते हैं कि दिल्ली से बड़े पत्रकार अशोक वानखड़े हैं. मैंने ये जो टैग लग गया है बड़प्पन का, और यदि मैं बता नहीं पा रहा हूँ यूपी नंबर 1 काय में है, तो मैं बहुत परेशान हुआ. संजय, मैंने कईयों को कहा, कोई बताने की स्थिति में नहीं था. मुझे लगा कि एक ऐसा सवाल है पत्रकारिता में आ रहा है जिसके लिए मेरी 30 साल की पत्रकारिता खत्म हो गई कि मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि यूपी नंबर 1 काय में है. लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं स्मृति ईरानी जी को, उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बता दिया यूपी नंबर 1 काय में है. जब कुपोषण की बात चली और यूपी नंबर 1 कुपोषण में हो गया, तब मैंने जाके फिर मेरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया. तो पता पड़ा कि यूपी नंबर 1 कुपोषण में है, यूपी नंबर 1 बेरोजगारी में है, यूपी नंबर 1 कम इन्वेस्टमेंट आने में है, यूपी नंबर 1 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होने में है, यूपी नंबर 1 गंगा में लाशें बहने में है, यूपी नंबर 1 रेत में लाशें दफनाने में है, यूपी नंबर 1 लाशें जलने में है, यूपी नंबर 1 ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों में है. फिर एक तो भंडार लग गया और फिर मेरे पास सवाल का जवाब भी है. लेकिन आज जो जेपी नड्डा ने कहा, जेपी नड्डा तो बोल के चले गए. क्या जेपी नड्डा ने किसी सांसद या विधायक को पूछा कि क्या वो अपने क्षेत्र में जाने लायक बचा है? क्या उसके क्षेत्र में उसका वेलकम किया जाएगा? क्षेत्र के लोग जब पूछेंगे कि हमको पैरासिटामोल चाहिए थी, जिसको क्रोसिन कहते हैं, ये बुखार की दवाई है, ये 60 पैसे की आती है संजय जी. जब उस बुखार की दवाई भी नहीं मिलने के कारण सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए, तो क्या जवाब देंगे हमारे विधायक? क्या वहां के रास्ते ठीक हो गए? मैंने सुना गोरखपुर से बनारस तक जो रास्ता है 4 घंटे का रास्ता 10 घंटे लेता है. ये क्या ये विकास की गाथा लिखी जाएगी? मात्र भगवान एक सेकंड, जिस राम मंदिर की आप बात करते हैं, क्या जनता इतनी मूर्ख है कि उनको पता नहीं कि राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ? और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देके तो राम मंदिर बनाने के लिए कहा था. राम मंदिर की जमीन खरीदने में घोटाला करने का तो आदेश नहीं था, लेकिन वो तो आपने कर दिया. और उसके बाद भी आप इतने शर्मसार भी नहीं है कि राम के नाम से घोटाला करने के बाद भी इस बात को मानते हो. तो यहाँ तो सवाल इतने हैं, जवाब किसी के पास नहीं. और जब जवाब नहीं होते तो सर्वे आते हैं, फर्जी सर्वे करवाए जाते हैं. और जो मीडिया जिनके करोड़ों रुपए का बिलिंग है आरटीआई में आया है अभी संजय जी, ये बात अलग है कि आपको कोई मीडिया मानता नहीं, ना संजय शर्मा को मीडिया मानता है, ना हमको पत्रकार मानता है. हम सब देशद्रोही है वर्तमान सरकार के परिभाषा में. तो इन लोगों को तो कुछ मिलना नहीं है.
लेकिन तथाकथित जो देश प्रेमी है, जब 11-11 करोड़ का पेमेंट होता है तो आश्चर्य लगता है कि इस 11 करोड़ में कितनी पैरासिटामॉल आती भैया, कितने लोगों को रोजगार मिलता भैया? क्या इतने 11-11 करोड़ जो आप देते हो तो क्या गन्ने का जो बकाया है 3,100 करोड़ रुपए वो नहीं दे पाते?